लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। राजधानी दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड देशों का फोकस सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ठोस नतीजे देने पर है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक तनाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करता है तो इसका ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने समुद्री मार्गों की आजादी बनाए रखने और कूटनीति समाधान की जरूरत पर जोर दिया। My counterparts, Minister Montegi and Secretary Rubio, this is the third Quad meeting we have had since Secretary Rubio took office, and we thank him for his leadership. And as we also acknowledge Minister Montegi, who has been part of the Quad since the very beginning. And at every meeting that we have had, we have been focused on momentum and on making sure we deliver outcomes which are real, which are meaningful for our people and for the people of the Indo-Pacific. As Minister Jaishankar has said, we recognise our obligation, our responsibility to provide real choices, particularly as strategic circumstances in our region are deteriorating. The region is facing acute economic stress. We know the world is more unpredictable. We know economic volatility is increasing, and we know the consequences for our region of the Iranian closure of the Strait of Hormuz and what that means for our energy security, for our economies and for our people. वहीं दूसरी ओर क्वाड बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारी टीमों ने इस बातचीत से पहले जो काम किया उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास कुछ ऐसे ठोस और हासिल किए जाने वाले परिणाम हैं। इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने समुद्री निगरानी और रियल टाइम डेटा साझा करने की नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने क्वाड एट सी मिशन के अगले चरण की मेजबानी के लिए भारत का धन्यवाद भी किया। Today, that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are two big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation Initiative, which is going to leverage each of our country's maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. And last, I also want to thank India for committing to hosting the next iteration of the Quad at Sea mission, which brings together our respective coast guards. वहीं दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यह समुद्री मार्ग बिना किसी टोल के खुला रहना चाहिए। वहां जो हो रहा है वो गैर कानूनी, अस्थिर और अस्वीकार्य है। They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately. बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और विदेश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों और बिगड़ती स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है लेकिन सरकार की ओर से साफ जवाब नहीं मिल रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार स्थिति को साफ नहीं बता रही, जिससे लोगों में भ्रम और गुस्सा बढ़ रहा है। और विपक्ष मांग क्या कर रहा है? राहुल जी क्या मांग कर रहे हैं?
आप देशवासियों को बताओ कि स्थिति ये है, हमारी मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन गई, उसके कारण मजबूरी है और आने वाले वक्त में हमें ये कदम उठाने पड़ सकते हैं। अभी तो खाली मोदी जी ने आह्वान किया देशवासियों को, आप क्या क्या कदम उठाने हैं, वो कदम उठाने के जो कहा गया उसके बाद में नाटक हुआ सब मुख्यमंत्रियों का, राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उनके मंत्रियों का, कोई रिक्शा में गए, कोई पैदल गए, कोई इलेक्ट्रिक वैन में गए और वो का वो तमाशा हो रहा अभी भी, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है। तमाशे से मैसेज नहीं जाता पब्लिक में। अगर आप हकीकत में कुछ करते हो क्या, उसका मैसेज सीधा उतरता गले के अंदर, ग्रामवासी में, गांव पे जाता है। पर ये खाली तमाशे के लिए। अब कल परसों और बढ़ा दिए, आज CNG को बढ़ा दिए, ये क्या मजाक है, क्या मजाक है। अब खुल के कहो भाई ये हमारी मजबूरी है, लोग लाइक करेंगे उस बात को और वो भी समझेंगे भाई नेता प्रतिपक्ष का सम्मान किया है, उन्होंने जो मांग की है उसका जवाब दिया है सत्ता पक्ष ने, NDA गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। तो ये तो हुई कायदे की बात है। ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों में गलतफहमी पैदा हो और तो और लोग समझ नहीं पा रहे कि अब कल कितना बढ़ेगा, तो चिंता में ही लोग तकलीफ पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार बेशर्मी के साथ आम आदमी पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कंपनियों और अपने नजदीकी लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि आम नागरिक महंगाई से परेशान है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है। डीजल, पेट्रोल और CNG, आप देखें ना क्या किया इन्होंने। डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और CNG 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और CNG के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन सरकार कीमतों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे आम लोगों और उद्योगों पर असर पड़ रहा है। अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, MSI के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा। तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज है और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने बीजू जनता दल से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर पार्टी में आए हैं और ओडिशा में बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज वो मुझे आशीर्वाद दे के उनके बीच शामिल किए हैं ताकि उनके जो विजन है भारतवर्ष के लिए, एक विकसित भारत बनाने में उन्होंने जो सपना देखा है और उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभावित होके उनके कार्यक्रम से और उनका पर्सनालिटी से आज मैं बीजेपी में जोग दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि इसी प्रकार बीजेपी के नेतृत्व और सारे मेरे बीजेपी में मित्र मेरे साथ वो उस प्रकार का संपर्क रखेंगे और आगे जाके मुझे उड़ीसा में बीजेपी के लिए बहुत सारा काम करना है, मजबूत करने में कोशिश करूंगा। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि देश में बढ़ते आर्थिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालातों के कारण अगले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसी बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तथ्य के लगातार बयान देते हैं। कांग्रेस बस युवाओं को गुमराह करने का काम करती है। राहुल गांधी की ऐसी टिप्पणियां उनकी हताशा और निराशा को दर्शाती है। एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, एआई और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को भ्रमित करने और संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है। राहुल गांधी का ये बयान अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और ये बयान उनकी हताशा, निराशा, डिप्रेस्ड मानसिकता का हिस्सा दिख रहा है। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों के बीच कांग्रेस विधायकों की बैठक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को ही निर्णय लेना चाहिए। अक्सर ऐसी बैठकों को लेकर नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जबकि कई बार बैठकें सामान्य संगठनात्मक कारणों से भी बुलाई जाती है। हर बैठक में बदलाव का कोण ढूंढना जरूरी नहीं होता, यह पार्टी के अंदरूनी फैसलों पर निर्भर करता है। जब आपके सवाल में ही है कि पार्टी हाईकमान को तय करना है, तो जाहिर है वहां की डायनामिक्स के हिसाब से, आगे की संभावनाओं के हिसाब से, और कई दफा ऐसा भी लगता है कि किसी और कारण से भी बुलाया गया हो सबों को, तो अक्सर लोग उसमें नेतृत्व परिवर्तन का दृष्टिकोण या कोण ढूंढने की कोशिश करते। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में सरकार ने जनता पर कम बोझ डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती है। ये जो स्थिति है, पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में भारत में सबसे कम बोझ जनता पे डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस आज हुकूमत में होती तो ये पेट्रोल डीजल के दाम को डबल कर देती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कि जनता पे कम से कम बोझ डाला जाए। सरकार इसको निपटने का पूरा इंतजाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब दुनिया में वैश्विक संकट है, हरमुज बंद है, तेल गैस की आपूर्ति कम हो रही है, उसके बाद भी भारत ने वो सब उपाय किए हैं जो एक सरकार को करना चाहिए। इस पर जहां पूरे देश को एक होना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Make.